کیا ہو اگر ایک حادثہ آپ کی زندگی ختم کر دے لیکن اگلے ہی لمحے آپ کو ایک دوسری زندگی دی جائے اور وہ بھی صرف 7 دن کے لیے؟ کیا آپ اپنی زندگی بدلنا چاہیں گے؟ ہماری آج کی کہانی کچھ ایسی ہی ہے۔ یہ کہانی ہے لیو کی، ایک نہایت کامیاب وکیل جس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا مقصد صرف کیس جیتنا اور پیسہ کمانا ہے۔ اسے نہ جذبات سے کوئی سروکار ہے، نہ انصاف سے، اور نہ ہی صحیح یا غلط سے۔ اس کے لیے بس ایک ہی چیز اہم ہے، ہر حال میں جیتنا اور پیسہ کمانا۔ ایک دن گاڑی چلاتے ہوئے اچانک اس کا ایک بہت ہی خوفناک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ سب کچھ ایک لمحے میں بدل جاتا ہے۔ جب وہ آنکھیں کھولتی ہے تو وہ اس دنیا میں نہیں ہوتی، وہ کسی اور ہی جگہ، کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکی ہوتی ہے، اور پھر اسے ایک ایسی حقیقت کا پتہ چلتا ہے جو اس کے ہوش اڑا دیتی ہے، وہ مر چکی ہے۔ لیکن کہانی میں سب سے بڑا موڑ ابھی باقی تھا۔ قسمت کے حساب سے اس کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا تھا، یعنی اس کی موت ایک غلطی تھی۔ اسی غلطی کی وجہ سے روحوں کی دنیا کے نظام نے فیصلہ کیا کہ لیو وہاں نہیں رہ سکتی، اسے واپس زمین پر جانا ہوگا، لیکن اپنے جسم میں نہیں بلکہ کسی اور انسان کے جسم میں۔ یہ سن کر لیو مکمل طور پر حیران رہ جاتی ہے۔ اب کہانی تھوڑا پیچھے جاتی ہے، جہاں ابھی تک اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، اور ہم اسے ایک وکیل کے روپ میں دیکھتے ہیں۔ اس کے سامنے ایک اسکول کی لڑکی اور اس کی ماں بیٹھی ہوتی ہے۔ لڑکی کے ساتھ اس کے کلاس فیلو نے زبردستی کی تھی اور وہ اس لڑکے کے خلاف کیس کرنا چاہتے تھے، لیکن یہاں ایک چونکا دینے والی بات سامنے آتی ہے۔ لیو اسی لڑکے کی وکیل ہوتی ہے جسے سچ جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، چاہے لڑکی کے ساتھ کچھ ہوا ہو یا نہیں، اسے فرق نہیں پڑتا۔ وہ بے رحمی سے کہتی ہے، تم یہ کیس کبھی نہیں جیت پاؤ گی، تمہارے پاس کافی ثبوت نہیں ہے، اگر تم نے کیس کیا تو بدنامی الگ ہوگی، اور کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ لڑکا تمہاری بیٹی کو چھوڑ دے گا؟ اور کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس کے بعد کوئی لڑکا تمہاری بیٹی کو اپنائے گا؟ اگر میرے کلائنٹ نے تم پر ہت کی عزت کا کیس کر دیا تو تمہارے پاس لڑنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہوں گے۔ یہ سن کر لڑکی اور اس کی ماں بری طرح ڈر جاتی۔ ویسے بھی ان کے پاس کیس لڑنے کے لیے زیادہ پیسے بھی نہیں تھے۔ وہ خاموشی سے دفتر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور انصاف کے لیے لڑنے کا ارادہ وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ لیو کو پتا تھا کہ لڑکا غلط ہے، پھر بھی اس نے اسے بچایا، کیونکہ اس کے لیے نہ رشتوں کی کوئی اہمیت تھی نہ ہمدردی کی، اسے بس پیسہ چاہیے تھا، پیسہ۔ اس کی کولیگ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، تم نے غلط کیا، تمہیں سچ کا پتا تھا، پھر بھی تم نے لڑکی کے ساتھ ناانصافی کی، تمہیں اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ لیکن لیو کچھ نہیں کہتی ہے، بس خاموشی سے وہاں سے چلی جاتی ہے، جیسے اسے کسی کی بات کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ اپنے کیریئر کو آگے بڑھانے کے لیے وہ جرمنی جانے سے پہلے اپنی ماں کی قبر پر جاتی ہے اور آہستہ سے کہتی ہے، میں جرمنی پڑھنے جا رہی ہوں، میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں، میرے ساتھ رہنا۔ اس کی باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا اپنے باپ سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس نے کبھی بھی اسے قبول نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اس کا ساتھ دیا، اور جیسے ہی وہ قبر سے واپس آتی ہے وہ خوفناک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ خود کو ایک عجیب سے حال میں کھڑی پاتی ہے، جہاں ہر طرف کاؤنٹر لگے ہوئے ہیں اور بے شمار روحیں لائن میں کھڑی ہیں۔ لیو کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ وہ ایک کاؤنٹر پر بیٹھی لڑکی سے پوچھتی ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ لڑکی سکون سے جواب دیتی ہے، یہ آخرت کا کاؤنٹر ہے، لوگ مرنے کے بعد یہاں آتے ہیں۔ لیو کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہی تھی، اس کا جسم ختم ہو چکا تھا اور اب وہ صرف ایک روح تھی۔ کچھ دیر بعد اسے وہاں کے ڈائریکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ بی بی معاف کرنا، ہم سے غلطی ہوگی، آپ کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا تھا، ہمیں ایک اور عورت کو لانا تھا جس کا نام بھی لیو تھا اور اس کی لوکیشن بھی قریب ہی تھی، اس لیے ہم سے یہ گڑبڑ ہو گئی، اب انہیں یہ غلطی فوراً ٹھیک کرنی تھی۔ وہ مزید کہتے ہیں، آج رات ہم تمہیں زمین پر واپس بھیجیں گے، لیکن ایک دوسری عورت کے جسم میں، تمہاری یادیں تمہارے ساتھ رہیں گی لیکن چہرہ اس کا ہوگا۔ اور پھر وہ آخری بات بتاتے ہیں، آج اس عورت کا ایکسیڈنٹ ہوگا، جیسے اس کی روح نکلے گی تم اس کی جگہ لے لو گی۔ یہ سن کر لیو بالکل خاموش کھڑی رہ جاتی ہے، الجھی ہوئی، حیران اور کچھ سمجھ نہ پانے والی، کیونکہ اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی، لیکن اب وہ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہی تھی۔ اور پھر اگلی صبح وہ ایک نئی زندگی میں آنکھ کھولتی ہے۔ وہ ایک بستر پر لیٹی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک آدمی ہوتا ہے جو اس دنیا میں اس کا شوہر تھا۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوتا ہے کہ اب اس کی زندگی مکمل بدل چکی ہے، اب اس کے 2 بچے بھی ہیں جو اسے بے حد محبت کرتے ہیں۔ ہر کو دیکھ کر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عورت ایک فل ٹائم ہاؤس وائف تھی، کوئی نوکری نہیں، کوئی کیریئر نہیں، صرف گھر اور خاندان۔ یہ سب دیکھ کر لیو اندر ہی اندر بے چین ہونے لگتی ہے۔ یہ وہ زندگی نہیں تھی جس کی وہ عادی تھی۔ جب وہ اپنے بیٹے کو اسکول چھوڑنے جاتی ہے تو اس کی ساس اسے عجیب نظروں سے دیکھتی ہے، جیسے وہ اسے پہچان نہ پا رہی ہو۔ لیو سمجھ جاتی ہے کہ یہاں زیادہ بولنا خطرناک ہو سکتا ہے اور وہ خاموش رہتی ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ خود کو اس زندگی میں پھنسا ہوا محسوس کرنے لگتی ہے۔ وہ سوچتی ہے میں یہ زندگی نہیں چاہتی، اور اسی بے بسی میں وہ ایک چلتی گاڑی کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن ڈرائیور اسے دیکھ کر گاڑی موڑ لیتا ہے۔ وہ وہیں کھڑی رہ جاتی ہے، کنفیوز، پریشان اور ٹوٹی ہوئی۔ جب وہ واش روم میں جاتی ہے اچانک دوبارہ روحوں کی دنیا کا ڈائریکٹر اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ سخت لہجے میں کہتا ہے، او بی بی تمہیں یہ زندگی جینی ہی پڑے گی، کوشش کرو اسے قبول کرنے کی ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہ غصے میں کہتے ہیں، تم نے مجھے ایک ایسی عورت کے جسم میں ڈال دیا جو کوئی کام ہی نہیں کرتی، میری زندگی تو کام کے علاوہ تھی کچھ نہیں۔ ڈائریکٹر مسکرا کر جواب دیتا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ گھر سنبھالنا آسان کام ہے؟ دنیا کے سب سے مشکل کام ہے بی بی، ایک خاندان کو سنبھالنا، یہ کام 7 دن 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے۔ یہ بات لیو کو اندر تک ہلا دیتی ہے۔ ڈائریکٹر کے جانے کے بعد چاہتے نہ چاہتے اسے اس نئی زندگی کو قبول کرنا ہی پڑتا ہے۔ وہ گروسری اسٹور جاتی ہے گھر کے لیے سامان خریدنے، بہت ساری چیزیں اٹھا لیتی ہے جو اسے ضروری لگتی ہیں، لیکن جب وہ بل دیکھتی ہے اور بینک بیلنس چیک کرتی ہے
तो पैसे बहुत कम होते हैं, इसीलिए हमें एहसास होता है ये खानदान अमीर नहीं। वो सोचती है मुझे गरीब खानदान में डाल दिया गया है। अब इसे हर खर्च सोच समझ कर करना होगा। इसी दौरान इसके फोन पर कॉल आती है। इसका बेटा बस स्टॉप पर इसका इंतजार कर रहा होता है। वो जल्दी से इसे लेने जाती है। बेटे इसे गौर से देखता है, जैसे वो महसूस कर रहा हो कि ये इसकी माँ नहीं। लियो इसका शक समझ जाती है। वो इसके पास बैठती है और इसे सच बता देती है, मोह की दुनिया, गलती, जिस्म बदलने की बात, सब कुछ। लेकिन वो एक छोटा सा झूठ भी बोल देती है। 7 दिन बाद तुम्हारी असली माँ वापस आ जाएगी, परेशान मत हो। क्योंकि वो बच्चे का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। बेटा खामोशी से सब सुनता है और कहता है ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर वो इसे घर के बारे में बताता है, कौन क्या पसंद करता है, क्या ना पसंद करता है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक खूबसूरत दोस्ती बनने लगती है। रात को लियो सबके लिए खाना बनाती है। वो पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब सब खाने पर बैठते हैं, शोहर और बेटी कहती है खाने का जायका अच्छा नहीं है। लियो गुस्से में आ जाती है, चलाकर कहती है चुपचाप बंदे के पुत्रों की तरह खाओ। सब खामोश हो जाते हैं और बगैर कुछ कहे खाना खा लेते हैं। रात को बेडरूम में शोहर कहता है कि इन्हें जल्दी एक पार्टी में जाना है। लियो खुश हो जाती है और कहती है मैं पार्टी के लिए नया ड्रेस खरीदना चाहती हूँ। ये सुनकर शोहर हैरान रह जाता है, क्योंकि इसकी बीवी कभी खुद पर पैसे खर्च नहीं करती थी। फिर वो कहता है ठीक है। बाद में वो इसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन लियो को अच्छा महसूस नहीं होता। वो बहाना बना देती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं आप भी बीमार ना हो जाओ, और आखिर में जाकर लिविंग रूम के सोफे पर सो जाती है। अगली सुबह वो अपने बेटे के साथ दोबारा स्टोर जाती है। इस बार वो सबकी पसंद की चीजें खरीदती है। रात को जब शोहर घर आता है तो वो देखता है कि लियो ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि इसके लिए भी महंगे कपड़े खरीदे हैं। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। इसे समझ नहीं आता कि इसकी बीवी को क्या हो गया है। वो कहता है हम ये पैसे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बचा रहे हैं। लेकिन लियो जवाब देती है अगर हम कभी खुशी ही ना मनाएं तो पैसे कमाने का क्या फायदा। ये सुनकर शोहर और उदास हो जाता है। घर छोड़कर ओवर टाइम करने चला जाता है। लियो इसे जाते हुए देखती है और पहली बार इसे गिल्ट महसूस होता है। इसी एहसास में वो एक बार में चली जाती है और एक ड्रिंक ऑर्डर करती है। वहाँ एक औरत इसके पास आती है जो इसके जिस्म के असल मालिक को जानती थी। वो समझती है कि लियो वही औरत है और इसके पास बैठ जाती है। वो कहती है तुम्हारा खानदान बहुत खूबसूरत है, तुम और तुम्हारे शोहर सब कुछ बहुत अच्छी तरह संभाल रहे हो, तुम लोगों को देखकर मुझे रश्क होता है। ये बात लियो के दिल को छू जाती है। पहली बार इसे केस जीतने से नहीं बल्कि एक प्यार भरे घर का हिस्सा बनने से खुशी महसूस होती है। जब वो घर वापस जा रही होती है तो वो अपनी बेटी को एक लड़के के साथ देखती है। वो दोनों करीब आ रहे होते हैं। लियो फौरन दरमियान में आ जाती है। बेटी डर जाती है। लियो उसे डांटती नहीं, प्यार से समझाती। बॉयफ्रेंड होना गलत नहीं, लेकिन इस उम्र में ये सब नहीं करना चाहिए। भी तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। बेटी को लगा था कि इसे डांट पड़ेगी, लेकिन इसे प्यार और समझ मिली। इसकी आंखें नम हो जाती है और वो कहती है आज से मैं आपको सब कुछ बताऊंगी माँ। दिन गुजर जाते हैं और हर गुजरे दिन के साथ लियो का दिल बदलने लगता है। वो अपने बच्चों के और करीब आने लगती है और इसके घर को समझने लगती है। इसी तरह रूहों की दुनिया का डायरेक्टर एक बार फिर आता है। वो मुस्कुरा कर पूछता है तो अब कैसा लग रहा है, क्या तुम अब भी इस जिंदगी से नफरत करती हो। लियो एक गहरी सांस लेती और सच बोलती है ये जिंदगी इतनी बुरी नहीं जितनी मैंने सोची। घर संभालना बेकार नहीं, ये बहुत जरूरी काम, और जितना लोग इसे आसान समझते हैं इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। ये अल्फाज जैसे ही लियो के मुंह से निकलते हैं रूहों की दुनिया का डायरेक्टर अचानक गायब हो जाता है। लियो खामोशी से बैठ जाती है और टीवी ऑन करके अपनी शादी की वीडियो देखने लगती है। वो वीडियो में अपने शोहर को देखती है। वो मुस्कुरा रहा होता है, हंस रहा होता है और अपनी बीवी को मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा होता है। वो इन दोनों के दरमियान किए गए वो सारे वादे देखती है जो शायद वक्त के साथ कहीं खो गए थे। वीडियो देखते देखते लियो के दिल में एक नया एहसास जन्म लेता है। पहली बार इसे मोहब्बत की जरूरत महसूस होती है। एक सच्ची शादी, सिर्फ नाम का रिश्ता नहीं बल्कि दिल से जुड़ा हुआ तल्लक। इसी एहसास में डूबी ही वो सोफे पर ही सो जाती है। कुछ देर बाद इसका शोहर काम से वापस आता है। वो इसे आहिस्ता से उठाता है और प्यार से बिस्तर पर सुला देता है। अगली सुबह जब लियो की आंख खुलती है तो इसके सामने खूबसूरत नई ड्रेस रखी होती है। ये इसका शोहर इसके लिए खास तौर पर लेकर आया था। जब वो ड्रेस पहनती है और आईने में खुद को देखती है तो वो मुस्कुरा देती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो खूबसूरत लग रही थी बल्कि इसलिए कि किसी ने इसकी परवाह की थी। शाम को वो अपने शोहर के साथ पार्टी में जाती। वहाँ इसे एक ऐसी हकीकत का पता चलता है जो इसे पहले नहीं जानती थी। इसका शोहर एक बहुत ईमानदार इंसान, वो चाहे तो गलत तरीकों से बहुत सारा पैसा कमा सकता था, लेकिन इसने कभी भी करप्शन या गैर कानूनी काम नहीं किया था। इसी ईमानदारी की वजह से इसे कभी प्रमोशन भी नहीं मिली थी। इसका बॉस बार बार इसे करप्शन में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वो हमेशा इनकार करता रहा। ये सुनकर लियो का दिल नरम पड़ जाता है। वो अपने शोहर को हौसला देती है, अगर कुछ गलत है तो इसके खिलाफ बोल लो, अपना सच कभी मत छुपाओ। फिर वो इसे इसके बॉस के कोलीग के सामने ले जाती है, लेकिन वहाँ बॉस सबके सामने इसकी बेइज्जती कर देता है। अपनी बीवी को यूं जलील होता देखकर इसका शोहर मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाता। सालों का दबाव उसे एकदम बाहर आ जाता है। वो जोर से चीखता है, चुप हो जाओ सालों, हराम की कमाई खाने वालों, तुम लोग गलत तरीके से पैसा कमाते और हमें सिखाने की बात करते हो। ये सुनकर बहुत शर्मिंदा और गुस्से में पार्टी छोड़कर चला जाता है। पहली बार लियो के शोहर को अंदर से हल्का महसूस होता है। इसे एहसास होता है कि ये हिम्मत इसे लियो से मिली है। इसी वाकये के बाद दोनों एक साथ वक्त गुजारते हैं, हंसते हैं, घूमते और जिंदगी को महसूस करते हैं। रात को जब वो घर वापस आते हैं अचानक बेटी के कमरे से रोने की आवाज आती है। वो दोनों फौरन वहाँ पहुंचते हैं और देखते हैं कि बेटी के चेहरे पर चोट का निशान है। लियो अपने शोहर से कहती है आप बाहर जाएं, मैं बात करती हूँ। जैसे ही शोहर बाहर जाता है बेटी फूट फूट कर रोने लगती है। वो सच बताती है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की, जब मैंने मना किया तो इसने मुझे मारा। ये सुनकर लियो का दिल टूट जाता है। शोहर भी सब समझ जाता है। वो चुपचाप घर से निकल कर इसी रात इस लड़के के घर जाकर अच्छी खासी पिटाई कर देता है। अगले लियो के खानदान वाले पुलिस में शिकायत कर देते हैं। लियो और इसके शोहर को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। वहाँ वो लड़का अपने खानदान और
हॉस्पिटल एक महंगे वकील के साथ बैठा होता है। ये मंजर देखकर लियो के जहन में एक झटका लगा। ये बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल थी जो वो अपनी पिछली जिंदगी में खुद पैदा करती थी, जहाँ वो गलत लोगों को बचाती थी और सच्चे लोगों को डराती थी। इसके जहन में अपनी सारी पुरानी गलतियां घूमने लगती, लालच, बेरहमी, नाइंसाफी। वो वॉशरूम में जाती है और अंदर से टूट जाती है। इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसे एहसास होता है कि इसने कितने लोगों को दर्द दिया था, लेकिन इस बार वो भागने वाली नहीं थी। वो वापस आती है और सीधी खड़ी हो जाती है। अब वो पहले वाली संगदिल वकील नहीं, बल्कि एक माँ और एक औरत जिसे अब इंसाफ की अहमियत समझ आ चुकी थी। वो एतमाद से बात करती है, लड़के के खानदान के झूठ बेनकाब करती है और इन्हें इसी तरह डराती है जैसे वो पहले मासूम लोगों को डराती थी, लेकिन इस बार सही मकसद के लिए। डरते हुए लड़के के खानदान वाले शिकायत वापस ले लेते हैं और लड़का लियो और इसके खानदान से माफी मांगता है। घर वापस आने के बाद बेटी अब भी उदास होती है। कहती, मैं अब कभी भी किसी लड़के पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। लियो इसके पास बैठती है और प्यार से कहती है, तुम एक गलत इंसान से मिली हो। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के सब मर्द बुरे हैं। एक बुरे इंसान की वजह से अपने दिल को सख्त मत करो। बेटी खामोशी से सुनती है और फिर इसे गले लगा लेती है। दिन गुजरते जाते हैं और घर का माहौल बदलने लगता है। बेटा इसके करीब आ जाता है। बेटी इससे दिल की हर बात शेयर करने लगती है। घर में एक नया प्यार, सुकून और जिंदगी आ जाती है। पहली बार लियो वो सब महसूस करती जो इसे कभी नहीं मिला था, मोहब्बत, खानदान, अपनायत और हकीकी खुशी। अब वो सिर्फ जिंदा नहीं थी बल्कि वाकई जी रही थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगली सुबह जब वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही होती है, अचानक एक खौफनाक वाक़या पेश आता है। इसका बेटा तेजी से पलके झपकने लगता है, अपनी आंखों को पकड़ लेता है और घबरा कर कहता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चंद लम्हों बाद इसकी बेनाई मुकम्मल तौर पर चली जाती है। लियो के दिल में खौफ की लहर दौड़ जाती है। वो फौरन इसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर तफसील से मुआयना करता है और फिर संजीदगी से कहता है, इसकी आंखों की नसें खराब हो गई हैं। अगर फौरन ऑपरेशन ना किया गया तो ये हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा। तो ये हमेशा के लिए अंधा हो सकता है। ये सुनकर लियो जैसे पत्थर की तरह जम जाती है। खौफ, दर्द और बेबसी इसे घेर लेती है, लेकिन फिर वो खुद को संभालती है और डॉक्टर से कहती है ऑपरेशन फौरन शुरू किया जाए। और यही वो लम्हा है जहाँ इसकी असल आजमाइश शुरू होती है। कुछ घंटों बाद ऑपरेशन खत्म हो जाता है। डॉक्टर बाहर आकर बताता है पेशेंट की आंखें बच गई हैं। ये सुनकर लियो एक लंबी सांस लेती है। इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये दुख के नहीं, सुकून के आंसू थे। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल में अपने बेटे से मिलने जा रही होती है, अचानक रूहों की दुनिया का डायरेक्टर इसके सामने आ जाता है। इस बार इसका चेहरा नरम जरूर था, लेकिन आंखों में संजीदगी थी। वो आहिस्ता से कहता है, तुम्हारे 7 दिन खत्म हो गए हैं, अब वक्त आ गया है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ये सुनकर लियो का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो हॉस्पिटल की इमारत की तरफ देखती है और धीरे से कहती है, प्लीज मुझे एक बार इनसे मिलने दें, सिर्फ एक बार। डायरेक्टर खामोशी से सर हिला देता है। लियो अंदर जाती है। सबसे पहले वो अपनी बेटी से मिलती है। बेटी से जोर से गले लगा लेती है। लियो का दिल टूट जाता है क्योंकि वो जानती थी ये लम्हा कभी दोबारा वापस नहीं आएगा। फिर वो अपने बेटे के कमरे में जाती है। बेटा मुस्कुरा कर कहता है, माँ मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये सुनकर लियो के दिल में खुशी के साथ दर्द भी उठता है क्योंकि अब इसे जाना था। आखिर में वो अपने शोहर से मिलती है। दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते हैं। बगैर कुछ कहे वो सब कुछ महसूस कर लेते हैं जो लफ्जों में नहीं कहा जा सकता था। भारी दिल के साथ लियो हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। डायरेक्टर गाड़ी के पास इसका इंतजार कर रहा होता है। वो गाड़ी में बैठती है और दोनों इसी जगह की तरफ रवाना हो जाते हैं जहाँ इसका पहला एक्सीडेंट हुआ था, वही जगह जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। रास्ते में डायरेक्टर एक बाप की तरह नरमी से कहते हैं, मैं तुम्हारे बाप को जानता हूँ। इसे तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़ने का बहुत पछतावा था। वो माफी मांगना चाहता था, लेकिन इसकी जिंदगी खत्म हो गई। ये खामोशी से सुनती रहती है। इसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। डायरेक्टर मजीद कहता है, तुमने सालों से अपने दिल में गुस्सा रखा है, अगर हो सके तो इसे छोड़ दो। तुम्हारा बाप मरते दम तक माफी मांगने का मौका ढूंढता रहा। ये बातें लियो के दिल को छू जाती हैं। जैसे वो गाड़ी इस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचती है, अचानक एक और जबरदस्त टक्कर होती है। शीशे टूट जाते हैं, लोहा मुड़ जाता है, सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। जब लियो की आंख खुलती है, वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटी होती है। वो जिंदा है, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। इसे अपना वो पूरा खानदान याद होता है। प्यार, हंसी, दर्द, वो 7 दिन, सब कुछ बिल्कुल हकीकत लगता है। वो फौरन उठ और इसी हॉस्पिटल जाती है जहां बेटे का ऑपरेशन हुआ था। लेकिन रिसेप्शनिस्ट कंप्यूटर चेक करके कहता है, इस नाम के किसी बच्चे का यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। ये सुनकर लियो का चेहरा सुन्न हो जाता है। वो फौरन इस घर की तरफ भागती है जहाँ वो 7 दिन रही थी, लेकिन वहाँ कोई और खानदान रह रहा था। नए चेहरे, नई आवाजें, इस जिंदगी का कोई निशान नहीं जो इसे याद थी। वो पड़ोसियों से पूछती है, उम्मीद करती है कि शायद कोई इसे पहचान ले, लेकिन हर कोई यही कहता है, हम नहीं जानते तुम कौन हो। ऐसी कोई फैमिली यहाँ नहीं रहती। आहिस्ता आहिस्ता ये हकीकत इसके दिल में बैठ जाती है। वो 7 दिन, वो खानदान, वो मोहब्बत इस दुनिया में कभी था ही नहीं। शायद वो सब एक ख्वाब था या फिर कोमा के दौरान एक वहम, लेकिन चाहे वो हकीकत ना थी, इसने लियो को हमेशा के लिए बदल दिया था। इसी लम्हे लियो समझ जाती है कि इसे अब कैसे जीना है। वो पहले जैसे सख्त दिल वकील नहीं रहेगी। कुछ दिन बाद वो अपनी लॉ फर्म वापस जाती है। अपने कॉलीग से कहती है, क्या तुम्हें पिछले हफ्ते का वो केस याद है, वो लड़का जिसे हमने डिफेंड किया था? मैं चाहती हूँ वो केस दोबारा खोला जाए। मेरे पास सबूत है, ये लड़की सच बोल रही थी। इस बार हम इसके लिए लड़ेंगे। ये सुनकर इसके कॉलीग हैरान रह जाती है, क्योंकि वो लियो नहीं थी जिसे सब जानते थे। ये एक नई लियो थी जो अब इंसाफ का मतलब समझ चुकी थी। अब इसके लिए सिर्फ जीतना अहम नहीं था,
बल्कि सही के लिए जीतना अहम था। सेहतयाब होने के बाद लियो एक और फैसला करती हैं। वो अपनी बहन और छोटी भतीजी के साथ रहने लगती है। अब इसे मालूम हो चुका था कि खानदान की अहमियत क्या होती है। वो घर के कामों में मदद करती है, भतीजी के साथ खेलती है और बहन के साथ वक्त गुजारती है। पहली बार इसे वो सुकून मिलता है जो इसे पहले कभी नहीं मिला था। एक शाम वो अपनी पुरानी फैमिली फोटो एल्बम देख रही होती है। अचानक एक तस्वीर पर रुक जाती है जिसमें इसके माँ बाप एक साथ खड़े होते हैं। वो गौर से देखती है, इसे एहसास होता है कि इसके बाप की शक्ल बिल्कुल इस डायरेक्टर जैसी थी जिसे वो रूहों की दुनिया में मिली थी। इसीलिए हमें सब कुछ वाज़ेह हो जाता है। इसके बाप की रूह इसे मिलने आई थी, इसे रास्ता दिखाने के लिए, इसे बचाने के लिए और शायद माफी मांगने के लिए। इसी वक्त इसकी भतीजी इसके पास आती है और पूछती है, क्या ये आपके मम्मी पापा हैं? लियो आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहती हाँ। भतीजी दोबारा पूछती है, अब वो कहाँ है? लियो इस बार बगैर किसी गुस्से के सिर्फ मोहब्बत के साथ मुस्कुरा देती है और आहिस्ता से कहती है, जहाँ भी हैं खुश हैं। पहली बार इसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। जर्मनी जाने से पहले अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वो अपनी माँ की कब्र पर जाती है। वो घुटनों के बल बैठती है, प्यार से कब्र पर जमी धूल साफ करती है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आहिस्ता से कहती है, मैं पापा से मिली थी, आपने कभी बताया ही नहीं कि वो इतने हैंडसम थे। फिर थोड़ी शरारत से मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी फिक्र मत करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी और आपकी पसंदीदा वाइन भी लेकर आऊंगी। ये कहकर वो वहाँ फूल रखती है और खामोशी से वापस चली जाती है। जर्मनी जाते हुए जब वो जहाज में बैठती है तो किस्मत इसे एक और हैरानकुन सरप्राइज देती है। एक आदमी आकर इसके पास बैठता है और लियो इसे देखते ही पहचान लेती है। ये वही शख्स था उस दूसरी जिंदगी में इसका शोहर था। वो सिर्फ एक अजनबी था। वो आदमी हैरान होकर कहता है, लियो तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा क्लास फेलो था, तुमसे 2 लाइन पीछे बैठता था। बातों ही बातों में वो बताता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, एक बार तो मैंने तुम्हें प्रपोज भी किया था। लियो मुस्कुरा कर कहती है और इसे सब याद आ जाता है कि वो पहले कितनी सख्त दिल थी। जब दोनों के दरमियान बातचीत बढ़ती है तो वो लड़का सच्चाई से बताता है, मैंने एक बिजनेस शुरू किया था लेकिन वो फेल हो गया। अब मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। लेकिन अब लियो बदल चुकी थी। अब इसके लिए पैसे कुछ अहमियत नहीं रखते थे। वो इसे देखती है और महसूस करती है ये लड़का बिल्कुल वैसा ही है, ईमानदार, सच्चा, बिल्कुल वैसा जैसा वो अपनी इस जिंदगी में देख चुकी थी। लियो धीरे से मुस्कुरा कर पूछते, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? वो हंस पड़ता और कहता है, बच्चे? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। ये सुनकर लियो फिर हंस देती है और इसी लम्हे से सब कुछ समझ आ जाता है। वो बच्चे जिन्हें इसने प्यार किया था, गले लगाया था, मोहब्बत की थी, वो सिर्फ ख्वाब नहीं थे, वो इसका मुस्तकबिल थे। लियो आहिस्ता से कहती है, क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकती हूँ? और इसी लम्हे इसने खौफ नहीं, मोहब्बत को चुना, क्योंकि ज़िंदगी ने इसे सिखा दिया था कि असल जीत मोहब्बत, ख़ानदान और सच में होती है। और इसी के साथ हमारी आज की मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कभी कभी एक कहानी ज़िंदगी बदल देती है।